Hello friends, welcome to Chaitanya Vlogs আৰু আজি মই আপোনালোকক লৈ যাবলৈ ওলাইছো গুৱাহাটীৰ নিচেই কাষতে থকা ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগ ধামলৈ আৰু এই ধাম অৱস্থিত হৈ আছে গড়চুক পামহিত আৰু এই ধামলৈ যোৱাৰ আগত আমি তলতে প্ৰথমতে পাওঁ গণেশ মন্দিৰ এয়া দেখিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো এটো গণেশ মন্দিৰ আৰু প্ৰথমে আমি গণেশ দেৱতাক পূজা কৰি লওঁ আৰু তাৰ পিছত আমি ভীমাশংকৰ ধামলৈ আগবাঢ়ো হেতু কোৱা হয় যে প্ৰথমে গণেশ দেৱতাক পূজা কৰিহে আমি বেলেগ দেৱ দেৱীৰ পূজা আৰম্ভণি কৰো আৰু এতিয়া গণেশ দেৱতাক পূজা কৰি আমি ভীমাশংকৰ ধামলৈ আগবাঢ়িলো আৰু এই ৰাস্তাটো পাহাৰৰ মাজেদি যাব লাগে খুব ধুনীয়া ৰাস্তা মই যিমানখিনি পাৰো ভিডিঅ' কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগ যিখন পাহাৰত অৱস্থিত হৈ আছে সেই পাহাৰখনৰ নাম হৈছে ডাকিনী পাহাৰ গতিকে আমি আহি পাই গলো ভীমাশংকৰ জ্যোতিৰ্লিংগ ধাম আৰু এয়া মেইন গেট হয় মেইন দুৱাৰ আৰু এফালেৰে আমি জ্যোতিৰ্লিংগটোলৈ সোমাই যাব লাগিব গতিকে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াত খুব ধুনীয়া এটা শান্তময় পৰিবেশ গতিকে যেহেতু শিৱৰাত্ৰি আহি আছে মই ভাবিলো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰো বহুতে হয়তো শিৱৰাত্ৰিত ক'ত যাম বা ক'ত পূজা কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবি আছে সো আপোনালোকে ভীমাশংকৰ ধামলৈ আহিব পাৰে ইয়াত আহিলে আপোনালোকে বহুত ভাল পাব আৰু যেহেতু জাগ্ৰত মন্দিৰ যেহেতু এটা জ্যোতিৰ্লিংগ হয় কোৱা হয় এই ভীমাশংকৰ ধাম 12 জ্যোতিৰ্লিংগৰ ভিতৰত 6ষ্ঠ নম্বৰ জ্যোতিৰ্লিংগ বুলি আৰু এতিয়া আমি তললৈ আহিলো আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এই ফালেৰে আমি জ্যোতিৰ্লিংগটোৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব গতিকে এফালেৰে যাওঁতে আমি ইয়াত ভৰি ধুই যাব লাগিব আৰু পানীৰ মাজেৰে যাব লাগিব পৰিবেশটো বিৰাটেই ধুনীয়া আপোনালোকে যদি আহিছে আহা সকলে গম পাব আৰু যোনে আহিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে আহি বিৰাটেই ভাল পাব গতিকে আমি ভৰি ইয়াত ধুই ললো লৈ পেলাই এতিয়া জ্যোতিৰ্লিংগটোৰ ফালে আগবাঢ়িম য'ত জ্যোতিৰ্লিংগটো অৱস্থিত হৈ আছে আৰু তাতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছো ওচৰত ইয়াত শিৱলিংগৰ এনে ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু ইয়াত চাকি বন্তি ধূপ ধুনা আপোনালোকে যি জ্বলাম বুলি লৈ আহিব হেয়া আপোনালোকে ইয়াতে জ্বলাব লাগিব এই জায়গাখিনিত জ্বলাব লাগিব আৰু ইয়াতে নন্দী পূজাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি হয় আৰু য'ত জ্যোতিৰ্লিংগটো আছে তাত আপোনালোকে ধূপ চাকি জ্বলাব নোৱাৰে তাত আপোনালোকে পানী ঢালি পেলাই প্ৰসাদ আগবঢ়াব পাৰিব মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক মই হেকিনলে গৈ আছো বাকি ইয়াত মই এটা পূজা অৰ্চনা কৰি ললো ধূপ চাকি জ্বলাই ললো গতিকে এতিয়া এফালেৰে আমি যাম জ্যোতিৰ্লিংগটোৰ ওচৰলৈ যাম জ্যোতিৰ্লিংগ মই গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো যিমানখিনি পাৰো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে আহিলে পৰিবেশটো নিজে বুজি পাব আৰু শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন কিন্তু বহুত বেছি ভিৰ হয় গতিকে লাইন হাৰি পাতি আপোনালোকে আহিব লাগিব কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগে আহিলে আপোনালোকৰ সময়টো কেনেকৈ পাৰ হ'ব আপোনালোকে নিজেও গম নাপাব গতিকে মই আজি নহয় মই বহুতবাৰ আহিছো কিন্তু ভাবিলো যেহেতু শিৱৰাত্ৰি আহি আছে আপোনালোকক এবাৰ এই পৰিবেশটো দেখুৱাই লওঁ গতিকে এতিয়া মই আহি পালো জ্যোতিৰ্লিংগ আৰু মই লগত লৈ অহা প্ৰসাদ আৰু বাকি সামগ্ৰীসমূহ মই ফুল ইত্যাদি মই বামুণৰ হাতত দি দিছো ইয়াত তেখেতে আমাক গোটেইখিনি কৰি দিব গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াত এনে ধৰণে মানুহে ইয়াত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে সকলোৱে ইয়াত আগবঢ়ায় আৰু ইয়াত এনে ধৰণে আমি পূজা অৰ্চনা কৰো আৰু ইয়াত যি মনৰ কামনা আপুনি ভাবি পেলাই কিবা হৈ থয় হেয়া পূৰণ হয় বুলি কয় আৰু মই নিজেও প্ৰমাণ পাইছো গতিকে মই প্ৰমাণ পাইছো বাবে মই আজি আহিছিলো কাৰণ মা আৰু মই আমি এটা ডাঙৰ কামৰ কাৰণে আমি কিবা এটা ভাবিছিলো গতিকে হেতু হৈ গল আৰু মায়ে মনত ভাবি থৈছিলে যে যদি কামটো হৈ যায় ইয়াত মই বিচনী আগবঢ়াম বুলি যেহেতু ইয়াত ৰাইজসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল যেহেতু আহে আৰু গৰমৰ দিনত বতাহ মাৰি থাকিলেও বহুত গৰম লাগে গতিকে ইয়াত আমি বিচনী আগবঢ়ালো মায়ে কৈ থৈছিলে বিচনী আগবঢ়াম বুলি আৰু বিচনীয়ে আমি আগবঢ়ালো আৰু ইয়াত যেহেতু গৰম আহি আছে আৰু প্ৰসাদ লগতে লৈ আহিছিলো আৰু আমি এতিয়া পানী এনে ধৰণে জল আমি ঢালিলো লিংগত ঢালিব লাগে গতিকে আমাক গোটেইখিনি কৰালে তেখেতে আমাক আৰু তেখেতে বুজাই দিলে যে ইয়াত কি কেনে ধৰণে নিয়ম কৰা হয় গতিকে মই তেখেতৰ অকমান বাইটছ লবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো যেহেতু বহুত ভিৰ আছিল তো তাৰ মাজতেও তেখেতৰ টাইম অকমান উলিয়াই মই আপোনালোকৰ বাবে মই তেওঁৰ বাইটছখিনি ললো গতিকে মই আপোনালোকক শুনাই আছো ये 12 ज्योतिर्लिंग में ये भीमाशंकर भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग ये 6 नंबर है 6th ज्योतिर्लिंग है ये जगह का नाम है दाकिनीपुर है तो दाकिनीपुर में कामरूप से ये दाकिनीपुर एक सैजा पर्वत है भीमा नाम को एक असुर वास करता था वो कुंभकर्ण का लड़का था तो कठोर तपस्या करने के बाद भीमासुर ने ब्रह्मा वरदान मिला ब्रह्मा वरदान मिलने के बाद भीमासुर ने क्या कराया है इसमें कामरूप है ना तो कामरूपेश्वर कामदेव को दक्षिणा देवी को दोनों को पकड़ करके इस जगह पर रख दिया तो कामदेव में क्या कराया है वो ज्योतिर्लिंग बना करके उनको नमः शिवाय जप कर रहा है
तब जब कर है तब सजा पर्वत से भीमासुर आके बोला, हे कामदेव, तुम मेरा बुंदी साला बुंदी होके ज्योतिर्लिंग बना करके तुम नमः शिवाय जप कर रहा है, तुम नमः शिवाय बोल करो और ज्योतिर्लिंग तुम तोड़ दो, नहीं तो तुमको मैं मार डालूंगा। तो कामदेव में बोला, हे भीमासुर, मैं नमः शिवाय बोल नहीं कर सकता हूँ और ज्योतिर्लिंग तोड़ने नहीं सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिर्लिंग पर भगवान से विराजमान है। मैं तुम्हारा बुंदी साला बुंदी हो, जो करना ही वही करो। तो भीमासुर ने बोला, हे कामदेव, तू मेरा बात नहीं माना, तुम तुम्हारा राज्य देवता को रक्षा करने के लिए आह्वान करिए, अभी तुमको मैं मार रहा हूँ। तो कामदेव को मारने के लिए उसका तुरवाल फेंक दिया, तो उसी ज्योतिर्लिंग से भगवान से प्रकट होकर उसका तुरवाल जला दिया और भीमासुर को भी जला दिया। ये भीमासुर को शरीर है ये वाला, ये कमर के नाभि में रख दिया, तो उस आग जलते रहा। तो उसी समय से सड़क से इंद्रदेव को महादेव का लीला देखने के यहाँ पर आया, आके बोला, हे महादेव, भीमासुर को ब्रह्मा वरदान मिला, उसका तो आग बुझेगा नहीं, कैसे बुझा जाए। तो महादेव में बोला, इंद्रदेव उठा, उसका आग बुझेगा, तुम लोग माता गंगा जी को आह्वान करिए, माता गंगा जी आके उसका बुझा देगा। तो फिर इंद्रदेव को महादेव का वाणी सुन के माता गंगा जी को आह्वान किया। माता गंगा जी इंद्रदेव के आह्वान से शिष्ट का रक्षा करने के लिए माता गंगा आके उसका बुझा दिया। उसी दिन से माता गंगा बहते रहा। तो फिर इंद्रदेव ने बोला, हे महादेव, ये दाकिनीपुर कुत्सित जगह है, आप भक्तों का कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग पर विराजमान हो जाइए। तो महादेव में बोला, इंद्र देवता में ब्रह्मा वरदान का रक्षा के लिए भीमा नाम को असुर को नाम से भीमा शंकर भीमेश्वर बनते रहूँगा। उसी दिन से मंदिर का नाम हुआ भीमा शंकर मंदिर और ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग। और तेखेतक लग धरि अहार पिछते आमी देखिलो इयात और बाबाসকले एनेधरणे नाचि आछे और उलाई आहि थाकोते मैं आरो एगराकी बाबाक लग पालो और तेखेतर পৰা आमी सम्पूर्ण रूपे जानिबले चेष्टा करिलो जे भीमाशंकर धाমৰ जी काहिनी সেই काहिनी केनेधरणे प्रचलित। गतिके तेও আমাক 12টা শ্লোকৰ সহায়ত ইমান ধুনিয়াকে বুজাই দিলে। গতিকে মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ লৈছো। আহক শুনো তেখেতৰ মুখেৰে যে ভীমাশংকৰ ধামৰ এই কাহিনী কি আছিল। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममरेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च दाक्षिण्यां भीमशंकरम सेतु बंदे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विशेषम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालये तु केदारम घोषमेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनरा सप्तजन्म कृतं पापम स्मरेण विंशति। 12 ज्योतिर्लिंग पुराण के अनुसार हिंदी में श्लोक है और ये 6 नंबर स्थान हो गया आपका भीमेश्वर स्थान। इसमें कहानी के अनुसार भीमा असुर जो तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान अमर वरदान पाया था, बड़ा होके उसने अपनी माता से पिताजी का नाम पूछा तो माता ने बताया कि तुम्हारे पिताजी का वध मानव जाति ने कर दिया, राम ने मारा था, राम रावण की लड़ाई में कुंभकर्ण का बेटा था। इसलिए वो नाराज हो गया, मैं अमर हूँ, पिता भी अमर होगा, मेरे पिता को मानव जाति ने कैसे वध कर दिया। वो नाराज होकर मानव संहार करने के लिए यहाँ तक आया। यहाँ के राजा शिव भक्त थे सुदीक्षित, उनको बोला मेरा जप करो, मैं भगवान हूँ। उन्होंने कहा मेरा भगवान शिव जी है। वो शिवलिंग बना के पूजते थे। उनको सजा देने के लिए इस जंगल में बंदी बनाया था। बहुत दिनों के बाद अपने सेनापति को भेजा कि वो मेरा नाम जप रहा है कि नहीं, आप देख कर आओ। सेनापति ने जाके खबर दिया, नहीं उन्होंने तो कोई शिवलिंग बना के शिव जी जप रहे हैं। तब वो और नाराज होके आया कि चलो राजा का वध कर दूंगा। जब राजा का वध करने के लिए आया तो राजा को वध करने के लिए जब तलवार उठाया तो शिव जी प्रकट हो गए, भक्त को बचाए और राक्षस का वध किए। तो वो अमर वरदान पाया था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी को पुकारा कि आपने अमर वरदान दिया था, मुझको किसने मार दिया। ब्रह्मा जी ने समझाया, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए वरदान दिया, मगर तुम शिव भक्त को बंदी बनाए, शिव जी से लड़ गए। अब शिव जी के हाथों तुम्हारा उद्धार हो गया, भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार हो गया। मेरा वरदान तुम्हारी सुरक्षा के लिए था, शिव से लड़ जाने के लिए नहीं था। तब वो उसको समझ में आया, उसने मान लिया, प्रार्थना किया, भगवान ठीक है, मेरा संहार हो गया भगवान के हाथों, मेरा उद्धार हो गया, अभी मेरा नाम रह जाए, मेरा स्तुति रह जाए। फिर ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने भगवान जी को प्रार्थना किया, प्रभु आप यहाँ विराजमान होइए, इसको आशीर्वाद दीजिए। फिर शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। शिव जी मान जाते हैं, आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, तुम्हारा नाम से मेरा नाम जुड़ जाएगा। तो वो भीमा, ये शंकर, भीमा शंकर
संस्कृत में भीमेश्वर, ये भीमासुर, ये ईश्वर, ये भीमेश्वर का ये कहानी है। भगवान सबके देवी देवताओं के प्रार्थना करने पर यहाँ खुद विराजमान हो गए, संसार का उद्धार करने के लिए यहाँ विराजमान है। संसार का लोग आके पूजा करता है, पूजता। असुर जो भीमासुर है उसकी माँ करकटी, उसका भी स्थान है पहाड़ में यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। उसने वहाँ तपस्या कर रही थी। वहाँ पर जब रावण का भाई कुंभकर्ण घूमने के लिए आया, उसके साथ रह गया, उससे ये असुर का जन्म हुआ। वो घूम के नहीं आया, राम जी ने मार दिया रावण की लड़ाई में। तब ये नाराज हुआ कि मेरा पिता को मानव कैसे मार दिया। राम मानव जाति में आए, शारीरिक रूप में आए, इसलिए वो मानव संहार करेगा। राक्षस अमर था, बलवान था, तो राक्षसों को तो घमंड है। जैसे हिरण्यकश्यप को उसके पिता ने ही बांध दिया कि मैं भगवान हूँ जपो। तो बोलो वो कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने बोला मेरा भगवान खम्मा में है, तुमने खम्मा में बांध दिया। तो खम्मा से भगवान प्रकट हुए। उसी तरह इसका भी कहानी है। भगवान प्रकट हुए, भक्त को बचाएंगे। भक्त के बस में है भगवान। भक्त को भगवान को याद करना है, बुलाना है, आएंगे ही आएंगे। शाकनी 2 बहनें हैं जो राक्षसों की पत्नियां थी, यहाँ तपस्या करती थी। यहाँ उनका पहाड़ के अंदर तपस्या करने का स्थान है। उनके नाम से ये डाकिनी पहाड़ है। तो शंकर जी यहाँ विराजमान हो गए, तो डाकिन्याम भीम शंकरम, ये डाकिनी पहाड़ में आसाम के कामरूप जिला में है। यहाँ पर वो विराजमान हैं। तो इस श्लोक के पुराण के अनुसार ये हो गया डाकिन्याम भीम शंकरम। আৰু ইয়াত এনেধৰণে আৰু এজন ভক্তপ্ৰাণ বাবাই এনেধৰণে গীত বাদন কৰি আছে। গতিকে আহক চাওঁ, কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে আহি, আৰু আপোনালোকে আহিব, বহুত ভাল লাগিব। আৰু ইয়াত খুব ধুনীয়া ভোগ খোৱা হয়, শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন বহুত আয়োজন কৰা হয়। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ শিৱৰাত্ৰিত ভীমাশংকৰ ধাম জ্যোতিৰ্লিংগলৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেল চৈতন্য ব্লগছক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ছবোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনছবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। উভতি আহি থাকোঁতে এটা পদুম পুখুৰী দেখিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। তো চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগ।